show name is Na Hausla Harenge. He is our writer, creative director. He is our director, and I don't know where is the cameraman. I am the producer of this show. Post production in charge, Mr. Shashank. Production head, Mr. Bhupi. Line producer, Mr. Rajiv Tiwari. And our consultant, Mr. Vishal Bhagat. The helping hand in production, Mr. Prasant Kumar Singh. And our respected Ms. Tanu Goyal, executive producer. She is handling all the mails and all the mistakes. यही है हमारी छोटी सी टीम. Can we switch over for the pattern result? ना हौसला हारेंगे हम एक सब्जेक्ट है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हमने ये शो बनाया है जिसमें जो औरतें समाज की और अपने परिवार के लिमिटेशंस में रहकर अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती है, गलत चीज़ों को उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है, उस चीज़ को हम उजागर करेंगे. इसमें जैसे स्टोरीज हैं एसिड अटैक और ऑनर किलिंग और एक महिला HIV से पीड़ित है, इस तरह की स्टोरीज हैं. कैसे वो औरतें अपना मतलब इतनी बुरी स्थिति से गुजरती हैं, अपना हौसला उस स्थिति में इंसान अपना हौसला पर खड़ा जीने की तमन्ना भी छोड़ देगा. ऐसी स्थिति में वो औरतें कैसे अपने हौसले को बढ़ाती हैं और कैसे उस चीज़ को समाज में अपनी एक पहचान बनाती हैं. We have taken one liner from the real story and then we have fictionalized this because of जो issues आते हैं, copyrights and everything. We initially we have given thought by general whatever we read in daily newspaper, acid attack victim from Jharkhand, now she is married also. कि वैसे ही औरतें जो आम जिंदगी में मेन परसेंटेज लोग जो हार जाते हैं बिकॉज ये मेरी जिंदगी में हो गया, ये हो गया. नाउ वी डोंट हैव टू think and we don't have to do anything in life, and we have put it together all such stories from real life कि सेक्स ट्रैफिकिंग में फंसी हुई औरत हो या चाइल्ड अब्यूज या रेप एक्यूज, जहाँ इंस्पायरिंग इन दैट सेंस यहाँ लोग सोचते हैं कि अब ये जिंदगी खत्म होगी, दिस इज द डेस्टिनी, एंड देयर वी हैव द सक्सेस स्टोरी. Those women started their life, second inning of life, and now they are successful. This is the concept. Na hausla harenge. Okay, it also conveys somewhere down the line. It also gives us a reminder of crime patrol. It's a very much difference between crime patrol and Saavdhan India. It's inspiring. Sir, let me complete, sir, with due respect. It also reminds us of crime patrol and Saavdhan India, as you said, just right now. Does it mean that the story which you want to telecast on Hausla Na Harenge is a crime against women or crime, women empowerment? See, the concept is one story, 3 episodes. My structure goes like first episode, कैसे victim हुई, and she was having dream and everything, और कैसे negative elements life में. And second episode is like shaping how she defended her, how she started her life, and third, what she has done. की second inning life कैसे शुरू. I'm not showing only the crime. My main focus is ki how she outcome with those difficulties. That's the difference between crime patrol and my show. Okay, is there any possibilities? The stories, as you said, there are some stories who are based on real life incident. Is there any possibility getting the victim even on screen who talks about her story, such a story, I would say? I wanted that. I consulted some women and they openly came into my support, but because of the lack of budget and the structure what I have given into the Doordarshan is again somewhere I am getting the victim, somewhere I am not getting the victim. So in low budget to convey the message is the main. My question is to the
जहन में रखा आपने जब आप इस तरह के किसी सब्जेक्ट पे काम करते हैं जो महिलाओं की बात करता है, उनकी कामयाबी की बात करता है, उन्होंने किस तरह से लड़ाई लड़ी, उसको कितना रियल स्पेस में रखने की जरूरत रही है जब आपने लिखा? जब सबसे पहले महिलाओं की बात आती है, खास करके हमारे देश में, तो सबसे पहले मेरे जहन में जो बात आती है वो एक कविता की 2 पंक्तियां हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत न पक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो मैं जब भी नारी सोचता हूँ तो मुझे संपूर्णता का एहसास होता है। नारी का मतलब संपूर्ण होना, प्रकृति होना, और ये नारी के अंदर इतनी ताकत है, इतनी हैसियत है कि वो किसी भी सिचुएशन से लड़ सकती है, उभर सकती है। और जब मेरे पास ये कहानी आई, ये कॉन्सेप्ट आया लिखने के लिए, तो मेरे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो नारी कहते ही सबके दिमाग में हीरोइंस आती हैं। मुझे रियल हीरोज़ नज़र आते हैं। अपने घर में देखिए, अपनी माँ को देखिए, बहनों को देखिए, वो हर रोज़ कई हर्डल्स से, कई ऐसे सिचुएशन से लड़ रही हैं, बच्चों को उबारती हैं, पतियों को उबारती हैं, परिवार संभालती हैं और बाहर भी जाती हैं। तो ऐसी रियल हीरोज़ मेरे दिमाग में थी, ऐसी कहानियाँ मेरे दिमाग में आई जो हर रोज़ मैं अखबारों में पढ़ता हूँ, देखता हूँ, अपने आसपास में देख रहा हूँ, और वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। थैंक यू। Any question? सर, अपार्ट फ्रॉम दिस, कब टेलीकास्ट करने जा रहे हैं आप, और क्या हम फ्लोर पे जा चुके हैं, और हाउ लॉन्ग विल टेक टू बी ऑन द फ्लोर? It will be aired on 9:30 DD National, the curtain raiser of the show, which you will also watch after this press conference. And from tomorrow, the show will start 9:30 to 10 every Friday, Saturday, Sunday. ओके, जब हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं या शो की शुरुआत करते हैं, अमूमन जो सबसे बेस्ट होता है हमारे पास, हम उसको ही परोसते हैं ऑडियंस के लिए। इस बार जो स्टोरी इज टू अर्ली टू टॉक अबाउट, बट लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहूँगा, इस बार जो हम टेलीकास्ट, जो हम आज देखेंगे, जैसे आपने कहा, क्या स्टोरी होगी, उसके बारे में बताना चाहेंगे? Our first story is of honor killing. एक्चुअली ये ड्रामा है कि उसके लड़की के अपने चाचा ने ही मरवाया और फिर लड़की ने कैसे बदला लिया। सेंसर को लेके और उस सेंसर के एतराज़ों को लेके हाल में ही उड़ता पंजाब और बहुत से मुद्दे गरमाए हुए हैं। जब ऑनर किलिंग की बात करते हैं तो पॉलिटिकल दखल बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूरदर्शन खुद हिंदुस्तान का एक राष्ट्रीय चैनल है, वहाँ पे कुछ इस तरह की कठिनाइयों का सामना तो नहीं करना पड़ा, क्योंकि पहला एपिसोड हो भी ऑनर किलिंग पे, एक पूरा वोट बैंक है सर। As a producer, as a creative, my motive is clear that I am making this show only to inspire the women, nothing more than that. There are big people. There is a big discussion, and there are big people in Uttar Punjab and censor. Yeah, my production house is also planning a film. It will be shoot in Jharkhand. Is again about the relationship की हम लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, स्काइबस की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, और एक छोटी सी लड़की, she is struggling to find a good friend in her life that she can share about her feeling, about experiences. उसकी वही लड़ाई अभी तक चल रही है। सर जो सोच के गए थे, दूरदर्शन की जीआरपी बहुत ज़्यादा है और जो स्टोरी का जो थॉट है वो दूरदर्शन के व्यूअर्स ज़्यादा देखेंगे। वी can't compete with the GEC and because these shows doesn't have any glamour and TRP like creams, because casting भी वैसे ही है कि जो कहीं नहीं है वहीं हम लोग के साथ है, कितना हौसला आ रही है। Have you kept a target audience? जब हम दूरदर्शन की बात करते हैं उसके पकड़ गांव देहात हर जगह है, और जब महिलाओं की बात करते हैं तो शायद हिंदुस्तान के हर कोने में जहाँ महिलाएं हैं और खास करके जिन पे अत्याचार होता है वो छोटे शहर कस्बों से आती हैं, सिटीज से भी आती हैं, तो खास ये टारगेट था दूरदर्शन को चुनने का? नहीं, टारगेट में हमने तो ये भी एक स्टोरी में दिखाया है कि केवल जो औरतों की जो प्रताड़ना है वो गरीब घर में नहीं होती है, उससे ज़्यादा रिच जो घर है उसमें सबसे ज़्यादा होती है, वो पर्दे में रह जाती है, गरीब घर की चीज़ें सामने निकल के आ जाती है।
उसके लिए हमने जो 2-3 स्टोरी फीमेल फोर्टिसाइड और ये सब जो है दहेज और ये वो हमने रिच बैकग्राउंड में सेट किया है कि गरीब घर में तो सामने पता चल जाता है, लेकिन बड़े घरों जो रिच लोग हैं उनमें ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा ऋणात्मक होती हैं. Shraddha ji, what's your take on the show? Means being a woman, what was your thought about the show? देखिए सबसे पहले तो आई एम प्रिविलेज कि मुझे ऐसे शो को होस्ट करने का मौका मिला जो बीइंग अ वुमन एम्पावरमेंट की बात मैं कर सकती हूँ. आज तक मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स किए जो मैंने उन कैरेक्टर्स को ही जिया है, लेकिन आज मैं वो मुझे करने का मौका मिल रहा है जो मैं अभी तक अपने फील्ड में करियर में नहीं कर पाई हूँ. वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर सकती हूँ और जो रियली औरतें झेल रही हैं अपनी ज़िंदगी में और कैसे उसको उन्हें उत्साह से उससे निकलना है, उससे कैसे उबरना है. कम से कम वो मैं ऑडियंस तक बीइंग अ होस्ट वो मैं ऑडियंस तक पहुंचा सकती हूँ. और शायद जो अगर शायद 10 लोग इस पॉइंट पे काम कर रहे हैं तो अगर हम एक 11वें हैं इसके लिए काम करने वाले, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने ज़्यादा लोग इसके बारे में काम करेंगे उतना ज़्यादा ही बेहतर होगा, उतना ज़्यादा अच्छा होगा. So being a woman, I am privileged to host this show. I am very happy. Shraddha, do you got emotional somewhere down the line while working on an episode which you find very interesting and emotional? हाँ, अभी मैंने एक स्टोरी की थी एसिड अटैक को लेके. उसमें नित्या कैरेक्टर है, उसको जब भी उसको लेके मैं बात कर रही थी तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे उसका सीरियसली वो दुख दिखा. उसके ऊपर जब एसिड गिर जाता है उसके बाद लोगों का उसके प्रति जो रवैया था वो बहुत ही घृणात्मक और बहुत बुरा था. जबकि उसको तो लोगों को तो उसके साथ सिंपैथी होनी चाहिए. और डाउन द लाइन हम लोग मैक्सिमम लोग ऐसे ही करते हैं. हमारे आसपास में भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स घट रही होती, कुछ होता है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है अड़ोस पड़ोस में, हम सोचते छोड़ो छोड़ो हम फंस जाएंगे इसमें, तो हमें इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. बट मुझे लगता है बीइंग अ सिटीजन, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमें उसमें इंटरफेयर करना चाहिए ताकि वो चीज़ें कल को हमारे घर में भी हो सकती. My question to directors means how आपने कितना रियल इसको पोर्ट्रे करने की ज़्यादा कोशिश की और यू फिक्शनलाइज इट मोर. मतलब शूटिंग करते वक्त तो आर्टिस्ट से करवाना पड़ता है, लेकिन जब स्क्रिप्ट आती है तभी हमारे दिमाग में आ जाते हैं कि क्या स्टोरी है. तो एक बार उनके साथ बात करके उनको प्रॉपर समझा के फिर वो करना पड़ता है. तो मतलब आर्टिस्ट भी अच्छे होते हैं तो हो जाता है. और खास देखिए जब हम रियल स्पेस की बात करते हैं डिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. चाहे वो आप बॉम्बे की चाल दिखा रहे हो या झारखंड का कोई घर दिखा रहे हो, डिटेलिंग ऑलवेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. डिटेलिंग पे कितना ध्यान दिया गया बीइंग डायरेक्टर ऑफ द शो? हाँ, डिटेलिंग में एक तो एक्चुअली मुझे क्रिएटिव डायरेक्टर का बहुत सपोर्ट हुआ, जिन्होंने मुझे फ्रॉम द बिगिनिंग बहुत समझाया कि ऐसा है. बाकी तो स्क्रिप्ट में भी बहुत क्लियर था. तो शूटिंग करने के पहले से हम लोग क्लियर थे कि क्या करना है और क्या नहीं करना. प्रोड्यूसर से जानना चाहूँगा प्लीज, इफ द प्रोड्यूसर इज ऑन द बोर्ड, उनसे जानना चाहूँगा एक अलग मुद्दे को, इतने सेंसिटिव मुद्दे पे ये सब बनाना, यू नो एनीथिंग, इफ यू मेकिंग अ शो, इफ यू मेकिंग अ फिल्म, इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस जहाँ बहुत सारा पैसा, बहुत सारा वक्त लगता है. इस तरह के मुद्दे को उठाना, इस तरह के सब्जेक्ट को छूना, इट इज अ चैलेंज और अ रिस्क. First thing for me is not challenge, not a risk, is my passion. And I waited 3 years दूरदर्शन के चक्कर में, 3 साल मुझे लग गए शो को ऑन एयर लाने में. तो बीइंग एज अ प्रोड्यूसर आगे भी जो चीज़ें हैं वो जो सारे सब्जेक्ट हैं, इज नॉट फॉर द कमर्शियल वैल्यू, इज अ पैशन टू शो. एक ज़िंदगी मिली है जितने तरीके की, जैसे भ्रूण हत्या पे आई हैव रिकॉर्डेड 13 songs. The singer is from Haryana and I will put all the songs and I will make telefilm to make it for the Haryana and anything. So it's my passion sir only. And जितने ऑडियंस तक पहुंच जाए, या आप लोग हमारे इन लिमिटेड बजट हमारे सीरियल से अगर आप कन्विंस हुए या ये बोले कि नो इट्स अ वेरी गुड एफर्ट, एंड अगर 4 महिलाएं भी इंस्पायर हो जाती हैं तो सर यही हमारी चीज़ है, उससे ज़्यादा क्या सोचना. Because nowadays is a 9 channels और 9 channels में there is MH channel and MTV and everything. हम कहाँ स्टैंड करेंगे, कहाँ लोग देखेंगे. तो उन सारे कॉम्पिटिशन में अगर 5 लोग देखें बहुत बढ़िया से. Okay, we'll take a last question. Okay.
श्रद्धा, माय क्वेश्चन इज फॉर यू. आपको लगता है कि मतलब इस शो का लोगों पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? हाँ, मुझे बिल्कुल लगता है, क्योंकि जब लोग ये देखेंगे कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ किसी के ऊपर इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जब कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि इंसान जीने का के बारे में भी सोचना छोड़ देता है। उस पॉइंट पे जाके ये सोचना कि कैसे मैं इस चीज़ को फेस करूँ और कैसे मैं इस चीज़ से निकलूँ, ताकि मैं एक एग्जाम्पल सेट करूँ दुनिया के लिए। तो मुझे लगता है इससे 100% ये तो मतलब तय ही है कि 100 नहीं तो कम से कम 40 या 30 या 20 इतनी औरतों को तो ये इंस्पिरेशन देगी ही देगी, और वो बहुत है, वो एफर्ट बहुत है। थैंक यू सो मच. So all of you straight. All of you are straight. चलो, थैंक यू. मैम यहाँ पे देखिए मैम. मैम वापस आग बंद. ओके सर, माय क्वेश्चन इज फॉर यू. सबसे पहले सर इस शो के बारे में जानना चाहूँगा सर. व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ शो, मतलब किस तरीके का शो है ये? Format, सर मतलब structure. format and what is the concept of show? मतलब tell us about the show. I told you the concept is आपकी ज़िंदगी में जो भी नेगेटिविटी होती है, whether it's as a child abuse or rape or sex trafficking, आदमी को हार नहीं मानना चाहिए, उसको पॉजिटिव उसके अप्रोचेस होना चाहिए और उसकी ज़िंदगी फिर से शुरुआत करनी चाहिए। तो वैसी औरतों की कहानी है जो लाइफ के फर्स्ट पार्ट में उनके साथ इस तरीके के सेटबैक लगे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के मुकाम पे वो उसके सेटबैक के बाद भी पहुँचे, ना हौसला हारे हैं। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट, दिस इज़ द स्ट्रक्चर। हम लोगों ने एक स्टोरी को 3 एपिसोड में बांटा है। इट विल बी एयर ऑन फ्राइडे, सैटरडे, संडे। और जो पहले भी बोले कि पहले शुरू होती है उसकी स्टोरी की, कहाँ वो उसके साथ ज़िंदगी में दिक्कत हुई। सेकंड पार्ट इज़ उसने फिर फाइट कैसे किया और फिर वो कैसे अपने सक्सेस में अचीव किया। दिस इज द कॉन्सेप्ट। सर लेकिन इसी तरीके के टीवी और भी शो आ रहे हैं, जैसे कि लाइफ हो पे साउदर्न इंडिया एंड स्टोरी पे क्राइम पेट्रोल, जो एक स्टोरी को सिर्फ एक उनका एक टाइम स्लॉट होता है 1 घंटे का, उन्होंने बताया इसमें 45 मिनट का उनका शो होता है, 15 मिनट का उनका कमर्शियल ब्रेक। सो सर 3 दिन तक एक ऑडियंस एक ही शो में सर टिकी रहेगी, कैसा लगता है सर आपको? ये पहला बात तो है कि इट्स वेरी मच डिफरेंस बिटवीन सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल एंड माई शो। ओनली सिमिलैरिटी, if you talk about child abuse or about sex trafficking, it's not a crime, it's mental degradation. And वहाँ पे victim आपका मर्डर करता है, वो भी एक victim, that's also a crime. And a woman being raped is not मतलब उसको crime नहीं बोलते। तो यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट के लेवल पे इज अ डिफरेंस बिटवीन क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया एंड माई शो। और यहाँ पे हमने सक्सेस स्टोरी डाला है। फर्स्ट पार्ट में व्हाट हैपेंड विद हर, लेकिन उसके बाद 2 पार्ट में इज़ अ सक्सेस स्टोरी, इंस्पायरिंग स्टोरी, जहाँ पे आप नेगेटिविटी में नहीं जाएंगे, यू विल गो पॉजिटिव। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस शो एंड दिस। श्रद्धा जी, आपसे जानना चाहेंगे कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इस तरीके के शो में काम करने का? बहुत नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने पहले बहुत काम किया है, लेकिन इस तरह का कोई भी अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिली थी। आई प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स, बट ये एज अ होस्ट वो भी इतने सेंसिटिव इशू को लेके एक एंकर जो है, एक स्टोरी और ऑडियंस के बीच का लिंक होता है। तो आई एम रियली हैप्पी कि मैं इतने सेंसिटिव इश्यूज़ को ऑडियंस तक कन्वे कर पाऊँगी
एंड इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ ना हौसला हारेंगे हम। एंड सर जानना चाहेंगे सर कि कैसा एक्सपीरियंस रहा सर आपका, सर क्या क्या काम करना पड़ा इस तरीके के कॉन्सेप्ट लाने के लिए? नहीं, परेशानी तो नहीं पता, लेकिन नाउ आई एम विनर कि ये शो ऑन एयर होने जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें वो भूल गया। इट्स ओनली दैट कि कितने पॉपुलेशन तक और कितनी इसकी टीआरपी मिलती है और हम कितना बढ़िया इसको बना के ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज़ द ओनली टारगेट। एंड सर आइडिया क्या जानना चाहेंगे सर, किस तरीके से आइडिया आया कि इस तरीके का शो भी हम बना सकते हैं, इसमें लोगों की कहानियों को दर्शाएंगे एक एक एपिसोड में? नहीं साहब, एक स्टोरी और उसके 3 पार्ट हैं, 3 एपिसोड, तो आगे क्या बोला जाए? एंड मतलब सर कि आइडिया सर कैसे आया कि एक स्टोरी के 3 पार्ट में हम एक शो बनाएंगे इस तरीके का, इस फॉर्मेट का? You can't complete a sensitive story in a one episode. For the audience point of view, you have to put कि उसके पीछे पहले क्या हुआ, फिर बीच में क्या हुआ, एंड टू कन्वे द राइट मैसेज, राइट स्टोरी, राइट ड्रामा टू द ऑडियंस। तो वो जब तक हम 3 एपिसोड 2 एपिसोड में, कुछ स्टोरी हैं जो 2 एपिसोड में भी कंप्लीट हो रही है, कि जो स्टोरी का जितना डेप्थ है उस हिसाब से उसको हम कैसे कन्वे करें। यू कांट कंप्लीट इट इन वन एपिसोड, बिकॉज जब तक तो सारे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं, जो एविल हैं, जो नेगेटिव फैक्टर हैं, और वो इंट्रोड्यूस हुए, फिर सेकंड एपिसोड, फिर थर्ड एपिसोड। एंड श्रद्धा जी आपसे जानना चाहेंगे कि कितना इमोशनल हुई आप इस शो को होस्ट करते वक्त? ऐसा कुछ हुआ कि मतलब कि जो आपको ज़्यादा पसंद आई हो कहानी, कि कई बार आप भी उसमें इमोशनल हो गए? हाँ, ऐसा भी लोगों के साथ में हो सकता है, ऐसा भी हुआ है? हाँ, पसंद नहीं कहूँगी, वो तो मुझे बहुत ही अजीब सी फीलिंग आई। एक लड़की के ऊपर एसिड अटैक की स्टोरी है, नित्या है नाम उस कैरेक्टर का। तो उसके साथ उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, जब उसे अगर अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसे वो एक लड़के को मना करती है और उसके ऊपर एसिड अटैक किया जाता है। तो मेरा यही सवाल है, क्या जब पहले एक और लड़की को स्वयंवर में अपने वर चुनने की वो थी, आज़ादी थी, फ्रीडम था, तो आज की डेट में कोई एक लड़की अपने हिसाब से अपनी पसंद क्यों नहीं चुन सकती है? और उसके एवज में उसके ऊपर एसिड अटैक होता है, एंड व्हाट ट्रॉमा शी गोज़ थ्रू, वो फीलिंग है, वो फीलिंग बहुत ही मतलब दर्दनाक है, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन उसके हौसले की दाद देनी पड़ेगी जब वो इस चीज़ को ओवरकम करती है और उसके बाद सक्सेस पाती है। तो आपको लगता है कि मैम कि जिन लोगों पे इस तरीके का अन्याय होते हैं, जिन लड़कियों के ऊपर जो जिनको इस तरीके की परेशानी देखनी पड़ती है, उनको इस शो से कुछ प्रेरणा मिलेगी? बिल्कुल प्रेरणा मिलेगी। शायद पहले कुछ लड़कियों के साथ ऐसा क्राइम होते हों, वो सोचती हूँ अगर मैं इस क्राइम के बारे में बताऊँगी या कहीं कंप्लेन करूँगी तो उल्टा लोग मुझे ही कहेंगे या मुझे ही ब्लेम किया जाएगा कि हाँ ये ऐसा कर रही थी इसलिए इसके साथ ऐसा हो गया। लेकिन मुझे लगता है इस हमारी ये जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो फीमेल्स की, इसको देखने के बाद लड़कियों में हिम्मत आएगी और उन्हें ये हिम्मत आएगी, उन्हें ये फीलिंग होगी कि हाँ अगर वो कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप लेती हैं तो वो समाज में फैली इन बुराइयों के खिलाफ लड़ सकती है और सक्सेस भी पा सकती है। सर आपसे जानना चाहूँगा सर, ये शो सर जो है ये एपिसोड वाइज है कि सर ये सीरीज वाइज है, कि कितने इसमें एपिसोड आपने बनाए हुए हैं, कितने एपिसोड आपने सोच रखे हैं इसे बनाने के? कितने सोच रहे हैं तो दूरदर्शन पर डिपेंड करता है। ये मतलब सर एक हर एक कहानी का सर एक एंड होता है कि हम यहाँ से इसे इतने कर रहे हैं और हमारी इस कहानी का एंड इतना है। अभी तक हमारे पास 20 स्टोरी है जो हमारे दिमाग में, एंड आपसे बात करते करते हमने वो केमिकल फैक्ट्री, फीमेल इन्फोटिसाइड, उसके बाद ऑनर किलिंग, उसके बाद एक रियल स्टोरी बिहार की है, औरत कैसे ससुराल वालों के कारण सेक्स ट्रैफिकिंग में फंसती है और वो वहाँ से निकल के शी स्टार्टेड हर ओन NGO एंड शी इज़ वर्किंग, एंड वो उसी तरीके की महिलाओं को मदद कर रही हैं। इट्स अ रियल स्टोरी। उसके बाद आपको मैंने केमिकल फैक्ट्री की स्टोरी बताई, जैसे एसिड अटैक स्टोरी। फिर अभी एक जो नॉर्थ इंडिया में वो शादी वाली होती है, ज़बरदस्ती जो शादी वाली होती है, वो स्टोरी, इस तरीके की सारी स्टोरी। एंड सर कास्टिंग की अगर बात करें तो आपने आर्टिस्ट किस तरीके से चुने? दिस गॉड गिफ्टेड कि व्हेन आई गो थ्रू द स्क्रिप्ट, वो कास्टिंग, बिकॉज बेसिकली आई एम एन एक्टर, तो जितने फ्रेंड सर्कल में जितनी चीज़ें हैं वो और समझ में आ जाता है राइट कास्टिंग इसकी कैसे होगी, और बिकॉज कहीं ना कहीं आपको रील एंड रियल को मैच जब करना होता है, कि जैसे अभी जो स्टोरी हमने की वो स्टोरी झारखंड की है, तो उस तरीके के लोग जो दूसरी स्टोरी कर रहे हैं फ्रॉम बिहार,
तो स्टोरी एंड द एम्बियंस एंड द कैरेक्टर्स एंड किस तरीके के कन्वे राइट चीज़ें कन्वे होगी वो होता है। एंड सर आप प्रोड्यूसर भी हैं और जैसे कि आपने कहा आप एक्टर भी हैं, तो क्या किसी एक एपिसोड में आपको अभिनय भी करते हुए नजर आइए क्या? नहीं, उसमें ये कमेंट ना आया कि पता नहीं अपने ही एक्टर बनने के लिए प्रोड्यूस किया था। आई एम वेरी मच इन्वॉल्व इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द सीरियल एंड इसको कितना हम बढ़िया बना सकते। एंड सर अगर बात की जाए अगर चैनल की, तो और सिर्फ आपने दूरदर्शन ही क्यों चुना? और भी काफ़ी चैनल हैं हमारे जो इस तरह टू स्टार्ट अ गुड कॉन्सेप्ट, दूरदर्शन इज़ द ओनली चैनल जहाँ पे एक न्यू प्रोड्यूसर को मौका मिलेगा विदाउट गोइंग थ्रू द 3 साल का ITR एंड एवरीथिंग, एंड द कॉन्सेप्ट इज़ फॉर द लार्जर ऑडियंस एंड द GRP एंड TRP ऑफ द इज़ गुड। वो गांव-गांव तक वहाँ पे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड आपसे जानना चाहेंगे इस तरीके का आप शो पहली बार कर रहे हैं, तो मतलब कैसा आपका तजुर्बा रहा और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? एंड होस्टिंग भी आप मेरे ख्याल से शायद आप इसमें इस तरीके के शो में आप पहली बार कर रहे हैं। हाँ, इस उसके तरह बारे के में शो थोड़ा में आपका एक्सपीरियंस थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, मैंने बताया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और एक बहुत अच्छी फीलिंग है बीइंग अ वुमेन एम्पावरमेंट को लेके बात करना और उन चीज़ों को समाज के सामने लाना और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न का फ़र्ज़ निभाना। इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग। एंड सर आपसे जानना चाहूँगा सर कि सबसे ज़्यादा कहानी में अट्रैक्ट क्या किया कि इस तरीके का शो में प्रोड्यूस करना चाहिए? पता नहीं, कॉन्सेप्ट डेवलप करते करते कॉन्सेप्ट बन गया और फिर कहानियाँ मिलने लगी एंड जहाँ चाह वहाँ रहा, फिर उतना हमने दिमाग लगाया नहीं। आई एंटर्ड इनटू द कॉन्सेप्ट टू मेक इट अ वेरी गुड सीरियल एंड आई एम वेरी मच हैप्पी। अब इट्स अ वेरी गुड सॉन्ग, ना हौसला हारेंगे। एंड सर ये टीवी पर सर कब आएगा, इसका थोड़ा टाइमिंग्स के बारे में अगर आप बताएं। We are telecasting from tomorrow 9:30 to 10. Today is the Cutter Razor. Please watch on DD National 9:30 to 10. And Saturday, Sunday will be the episode. The first episode, the stories of honor killing. And the next week we have the acid attack story. उसके बाद we have this जो ज़बरदस्ती शादी करते हैं that story. श्रद्धा जी आपको जाते हैं तो कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? हाँ, बिल्कुल कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर देखें, ना हौसला हारेंगे हम, और इससे प्रेरणा लें। बहुत ही प्रेरणादायक स्टोरीज़ हैं और ये एक औरत के एम्पावरमेंट की स्टोरीज़ हैं, तो ये ज़रूर देखें, सारे फैमिली मेम्बर्स देखें इसको। और एज ए प्रोड्यूसर हम अच्छे कॉन्सेप्ट बनाते रहेंगे, देखे ना देखे, ना हौसला हारेंगे हम।